Hello students, very good morning. Students, as you know that your PT2 portion has completed in SST. So I have started the revision work. So students, regarding the revision work, earlier I have sent the revision lecture in economics, that is the people as resources. I hope you have listened this lecture carefully. And related to this chapter, I have sent the practice sheet also. In that practice sheet, very short and long question answer are there. So regarding the revision work, today I am sending the revision lecture in history, that is the socialism in Europe and the Russian Revolution. So students, in your book, first topic, that is the age of social change. So students, what is the meaning of social change? Social change means सोसाइटी में चेंजेस वो कैसे हुए. See in the book. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. Means in France, the people of France has started the revolution against the monarchy government, and they achieved the powerful ideas of freedom and equality, and these ideas has circulated in Europe after the French Revolution. So students, we can say that the French Revolution has opened the door, the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. So हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उन सारी पॉसिबिलिटी के लिए दरवाजे खोल दिए थे जिसके थ्रू हम सोसाइटी जो पहले से स्ट्रक्चर्ड है उसमें हम ड्रामेटिक चेंज कर सकें. So if we will study about in 18th century, society was broadly divided into state and orders, and it was the aristocracy and church. If we see in 18th century, society was divided into state and orders, and in this group who were there, aristocracy and church, which controlled economic and social power. Means जो state orders, जो aristocracy और church था, aristocracy means those belong to high caste, मतलब aristocracy जो उच्च वर्ग के लोग थे, और चर्च के लोग जैसे पादरी वगैरह ये जो लोग थे वो क्या करते थे, इकोनॉमिक और सोशल पावर पे उनका कंट्रोल था. बट आफ्टर द रेवोल्यूशन इट हैज़ टू चेंज. लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ये क्या हो गया है, सारे चेंज हो गए. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस. अब फ्रीडम और इक्वलिटी के साथ नए आइडियाज़ को लेकर के वर्ल्ड में डिस्कशन होने लगे, और उसमें यूरोप और एशिया भी था. इसी में इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया, इन इंडिया राजा राम मोहन राय, आई थिंक यू नो अबाउट द राजा राम मोहन राय, ही वॉज द रिफॉर्मर, वो समाज सुधारक थे. उन्होंने इंडिया में लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और लोगों को ये बताने के लिए उन्होंने कई सारे डिबेट भी किए, जिससे लोगों को पता चले कि फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन के थ्रू कैसे इन सारे आइडियाज़ को अचीव किया. सो स्टूडेंट, not everyone in Europe however wanted a complete transformation of society. मीन्स यूरोप में ही नहीं, यूरोप के लोग ही नहीं बल्कि सब जगह के लोग, मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग चाहते थे कि सोसाइटी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो. और अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में जो सोसाइटी था वो 3 ग्रुप में डिवाइड था, डेट इज़ द रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव. एंड नाउ हु वर रेडिकल लिबरल्स कौन से ग्रुप थे? Liberals are the groups who wanted the change the society that tolerated all the religions. मीन liberals में वो लोग आते थे
जो चाहते थे कि सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हो जाए, एंड दे टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन्स. लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ मोनार्ची. मीन्स लिबरल्स, they opposed to the monarchy government. They did not believe in universal adult franchise. Means वो right to vote पे believe नहीं करते थे. Now next topic is the radicals. Who are radicals? Radicals are those who wanted a nation which was बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. रेडिकल्स का मानना था, वो ये चाहते थे कि एक ऐसा नेशन क्रिएट हो और उस नेशन में ऐसी एक गवर्नमेंट हो जो किसके बेस पे हो, कंट्री के पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के बेस पे बने. दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट. और साथ ही साथ उन्होंने वुमेन्स के मूवमेंट को भी सपोर्ट किया. वुमेन्स सफ्रागेट मीन्स इन दैट टाइम in Russia, women are not allowed to right to vote. So for this, women has started revolution, and they try to they demand that they demand that women also give right to vote. So for this movement, radicals has supported women suffragette movements. एंड दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ लैंड ओनर्स एंड नॉबल्स. और साथ ही साथ वो किसके अपोज थे, वो अपोज थे कि जो लैंड ओनर्स हैं और नॉबल्स हैं उन्हें जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं. स्पेशल प्रिविलेजेस मीन्स फैसिलिटीज़, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके ये अपोज थे. नाउ नेक्स्ट इज द कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मीन्स दोज बिलीव इन द ओल्ड थिंग्स. कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के आइडियाज़ से पूरी तरीके से अपोज थे. कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स टू नीड फॉर चेंज. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव को भी लगने लगा, मतलब उनके भी दिमाग के दरवाजे खुल गए और उन्हें भी लगने लगा कि इन सोसाइटी नीड फॉर चेंज, सोसाइटी में चेंजेस की ज़रूरत है. अर्लियर इन 80th सेंचुरी, लेकिन हम 80th सेंचुरी की अगर बात करें, कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज. 80th सेंचुरी में ये पूरी तरीके से अच्छे जो चेंजेस के बिल्कुल विरोध में थे. बट इन 90th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डैट सम चेंजेस वर नीडेड, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है. लेकिन उनका विश्वास किस पे था, पास्ट पे भी था. उनका विश्वास था पास्ट का और पुरानी चीज़ों की वो रेस्पेक्ट करते थे. इसीलिए वो चाहते कि जो चेंजेस हो वो स्लो प्रोसेस में हो, जिससे उनकी पुरानी चीज़ें वो सेफ रहें. Such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. ये सारी जो आइडियाज़ थे, लिबरल्स कुछ चाहते थे, रेडिकल्स कुछ चाहते थे, कंजर्वेटिव कुछ चाहते थे, जिससे सोसाइटी में चेंजेस नहीं हो पा रहे थे. इस वजह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. The various attempts at revolution and national transformation in the 90th century helped define both the limit and potential of the political tendencies. मीन्स कई सारे रिवोल्यूशन में अटैम्प्ट हुए, कई सर्कमस्टेंसेस हुए, नेशनल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 90th सेंचुरी में, और साथ ही साथ जिससे क्या हुए, जैसे पॉलिटिकल्स की क्या लिमिट्स हैं, सारी लिमिट्स को डिफाइन किया गया. Now students, today I have explained two topics, that is the age of social change and liberal, radicals and conservative. Student, tomorrow I will send the remaining part of explanation. I hope you have listened this lecture carefully. Thank you and have a nice day.